वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ द चैप्टर शेयर कैपिटल। और हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव विदाउट प्रोराटा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंड्स फॉर, अभी तक जितनी एंट्रीज हमने की हैं सब एक ही क्वेश्चन में होंगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स इन अरियर, मे बी कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर रीइश्यू एंड मे बी इन केस बैलेंस शीट ऑल्सो। Let's start with the questions comprehensive without pro rata. Question number 38. Question number 38. Ajanta Company Limited having a nominal capital of 3 lakh divided into share of 10 each. Offered for the public subscription 20,000 shares payable on 2 on application, 3 on allotment and balance on 2 calls of 2.5 each. So 10 रुपए का शेयर, 2 on application, 3 on allotment, 2.5 on first call and 2.5 on second call. Application were received for 24,000 shares over subscription. Application for 20 were accepted in full and the shares allotted. 4,000 को पैसे वापस कर दिए, 20,000 को 20,000, 4,000 को वापस। Application for the remaining shares were rejected and application money were refunded. All money duly were received within except a final call of 6,000 shares which were forfeited after legal formalities were fulfilled. 400 shares of the forfeited shares were issued at 9 per share. Record necessary journal entries. Final call पर पैसे नहीं आए। Let's start with the entry. Entry number 1. सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाउ मच? 24,000 into 2, 48,000. Entry number 2, share application money account debit to equity share capital to बैंक। पैसे रिफंड किए गए हैं, नो प्रोराटा। 24,000 into 2, 20,000 into 2, 40, 2,000 into 2, 4,000 refund। नेक्स्ट, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, नो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital, 20,000 into 3, 3 is the allotment, 60,000। एंट्री 4, अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे और कोई डिफॉल्ट नहीं है। बैंक टू share allotment, bank to share allotment, that would be, सारे के सारे पैसे आ गए 60,000। कोई डिफॉल्ट होता तो कॉल्स इन अरियर, और अगर प्रो राटा होती तो एडवांस माइनस कर देते। ना तो प्रो राटा है ना ही डिफॉल्टर है। नाउ वी विल आस्क द फर्स्ट कॉल। सभी पैसे मंगवाए जा चुके हैं, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई है 600 शेयर्स पर। तो हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कॉल 1 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 into 2.5, 50
Now we'll receive first call. Bank to share first call 50,000. Now we'll ask the final call. Share final call or share second call to equity share capital 20,000 into 2.5, 50. We will receive the final call, but we have the default here. Bank calls in arrear to share final call. 50,000 मंगवाए, उसमें से 600 शेयर पर पैसे नहीं आए. 600 into 2.5, 1500, 48,500 आ गए. 50,000 में से 1500 नहीं आए, 48,500 आ गए. अब क्वेश्चन में बोला गया ये शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे. एंट्री नंबर 9. लेट्स फोरफिट द शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, एसपीआर नहीं है क्वेश्चन में. 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉरफीचर. 600 शेयर्स फोरफिट किए गए. 600 into 10 fully called up. कॉल्स इन अरियर नहीं पे हुई 2.5 की, विच इज 1500. और बाकी जो उसने पे कर दिया 4500, बैलेंसिंग फिगर, विच इज नथिंग बट 600 into 7.5. नेक्स्ट, these shares were रीइशूड. अब ये शेयर्स रीइशू किए गए हैं. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. $600 into 10, fully called up, fully paid up 10. 9 per share. 600 into 9, 5400 पर शेयर. 10 का शेयर 9 में. 10 कैसे? क्योंकि फोरफिट 10 में थे. 10 का शेयर 9 में, तो 1 रुपए का हो गया लॉस. शेयर फॉरफीचर बैलेंस 600 रुपीज लॉस. री इशू है तो कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा. दैट वुड बी शेयर फॉरफीचर to capital reserve. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit. That would be 3,900. Share forfeiture credit, share forfeiture debit. क्योंकि सारे शेयर इशू हुए हैं. Record necessary journal entries and prepare the balance sheet showing the amount transferred to capital reserve and balance in share forfeiture account. forfeiture account में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं. क्योंकि सारे शेयर्स रीइशू हो गए तो forfeiture में तो कुछ आएगा ही नहीं ना. नाउ उन्होंने पूरी बैलेंस शीट बोली है. लेट्स मेक द बैलेंस शीट नाउ. बैलेंस शीट and extract. Particulars, note number, amount in rupees. First, equity and liabilities, shareholder funds, A, share capital, B,
reserves and surplus. Note number 1, share capital. First we have is authorized capital. ₹3 lakh, that means 30,000 shares of ₹10 each. 3 lakh, double line. Then we have is issued capital. एप्लीकेशन हमने मंगवाई 20,000 की, 20,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, 2 lakh. Next we have is subscribed capital. Fully paid up. 24,000 आए, प्रो राटा हमने 20 ही लेने हैं, चाहे प्रो राटा हो चाहे रिफंड हो, हमने 20,000 ही लेने हैं क्योंकि 4,000 या एडजस्ट हो जाते हैं या रिफंड हो जाते हैं। 20 में से 600 में पैसे नहीं आए तो 19,400 में आए, फिर वो 600 रीइश्यू हो गए, फोरफिट के बाद रीइश्यू हो गए तो 20,000 ओनली। 20 कैसे? 19,400 प्लस 600, ये है जिन्होंने सारे पैसे टाइम से दिए और ये हैं जो रीइश्यू हुए। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। कम में इशू है ज्यादा में इशू है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एसपीआर और कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दिस 2 लाख विल राइट हियर। नोट नंबर 2, reserves and surplus. We do not have share forfeiture, we just have capital reserve. How much is capital reserve? 3,900. अगर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे उसका कैरी डाउन 0 आएगा, तभी बैलेंस शीट में से, अगर लेजर में 0 आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में 0 जाएगा तो बैलेंस शीट में 0 जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो लेजर के बाद ही बनती है ना, लेजर के बैलेंसेस ही शो करती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के कुछ बैलेंस आ रहा था, वही बैलेंस शीट में 3,000 गया था, सेम थिंग। नाउ दिस 3,900 इज द टोटल, विल राइट इट हियर। अगर आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 2,03,900। ध्यान देना आप मैं जो बोल रहा हूँ, लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 2,03,900 और कैश का टोटल बैंक में आ जाएगा 2,03,900, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो जो लायबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल हो जाएगा अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। गिविंग यू 1.5 to 2 मिनट फॉर द एंटायर क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ये था 6 to 8 मार्कर क्वेश्चन, कंप्लीटेड।
Speed up 30 more seconds. Number 41. Let's do 41st. Shyam Limited invited applications for issuing 80,000 equity share of 10 each at a premium of 40 per share. 10 का शेयर 40 का प्रीमियम, यस पॉसिबल है. 10 का शेयर 40 का प्रीमियम बन गई 50. द अमाउंट वॉज पेबल एज 35 ऑन एप्लीकेशन. 30 प्रीमियम, 5 प्लस 30. पहले कैपिटल लिखते हैं फिर प्रीमियम. 8 ऑन अलॉटमेंट, 4 प्रीमियम विच इज 4 प्लस 4 एंड द बैलेंस ऑन कॉल दैट वुड बी 7. 50 में से 35 हुए एप्लीकेशन, 8 हुआ अलॉटमेंट, बाकी बनी कॉल. और वो कॉल कितनी हुई? 1 प्लस 6. देखिए कैपिटल बनी 5, 4, 9, 9 1 10, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10 और प्रीमियम बना 30 प्लस 4 34 प्लस 6 40. Application for 77,000 shares were received under subscription. Shares were allotted to all the applicants. Sundaram, to whom 7,000 shares were allotted, failed to pay allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. Shares forfeit किए गए just after the allotment. Afterwards, the first and final call was made. Satyam, the holder of 500 shares, failed to pay first and final call. His shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued. The reissued shares are of Satnam. Past journal entries. 8 mark question. Entry number 1. Application money receive करेंगे. Bank account debit to share application 77,000 into 35. 77,000 into 35. 26,95,000. Now the application money will be transferred to capital. Share application account debit to equity share capital to security premium reserve. Share application money में आ जाएगा 26,95,000. शेयर कैपिटल में आएगा 77,000 इंटू 5 और प्रीमियम में आएगा 77,000 इंटू 30. थर्ड एंट्री. अब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. $77,000 into 8, 77,000 into 4, 77,000 into 4. 6,16,000 this, 3,08,000 this.
Now we will receive allotment, but we have a default here. Bank calls in arrear to share allotment. $6,16,000 मंगवाए, जिसमें से 7,000 शेयर्स सुंदरम ने पैसे नहीं दिए। 7,000 इंटू सुंदरम ने पैसे नहीं दिए, 8 रुपीज की अलॉटमेंट है। सुंदरम के पास 7,000 शेयर है, तो 56,000 नहीं आए। 6,16,000 में से 56,000 नहीं आए, 5,60,000 आ गए। अब कंपनी ने शेयर्स फोरफिट किए, स्पेसिफिकली मेंशन है, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। कॉल मंगवाने से पहले अलॉटमेंट के बाद शेयर्स फोरफिट किए गए हैं। शेयर फोरफिट करने की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। सुंदरम के शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे। 7,000 इंटू कॉल्ड अप एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, कॉल्ड अप प्रीमियम के अलावा, दैट वुड बी 5 + 4, 5 + 4, 9 रुपीज मंगवाए हैं हमने अभी तक। 7,000 इंटू 9, 63,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा जो मंगवाया है पर पे नहीं किया। ये प्रीमियम मंगवाया, पे कर दिया, कूल। ये मंगवाया, पे नहीं किया, ये मंगवाया ही नहीं, सो 4 रुपीज। 7,000 इंटू 4, 28,000। कॉल्स इन अरियर, हाउ मच कॉल्स इन अरियर? जो पे नहीं किया प्रीमियम के साथ, 8 रुपीज नहीं पे किए प्रीमियम के साथ, 56,000। फोर फीचर जो पे किया है प्रीमियम के अलावा, फोर फीचर जो पे किया है प्रीमियम के अलावा, दैट वुड बी 5। दैट्स इट। अब ये शेयर्स रीइशू नहीं किए गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अब कॉल मंगवाई। ये शेयर्स अब कंपनी के पास है, ये शेयर्स कंपनी के पास है, रीइशू इसके बाद होगी। 6th, अब कंपनी फाइनल कॉल मंगवाएगी, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो शेयर्स फोरफिटेड हैं उस पर थोड़ा कॉल मंगवाई जाएगी। 77 में से 7 माइनस करके 70,000 पर पैसे मंगवाए जाएंगे। स्टार मार्क ऑन 70। द शेयर्स विच आर विथ द कंपनी एज फोरफिटेड विल नॉट, द कॉल हैज विल नॉट बी आस्क्ड ऑन देम। कंपनी विल आस्क कॉल ऑन 70,000 shares, that is 77 minus 7. Sundaram forfeited shares. जो शेयर्स फोरफिटेड है उस पर आप कॉल नहीं मंगवा सकते क्योंकि वो शेयर्स कंपनी के पास ही हैं। 70,000 इंटू 7, 4,90,000, 70,000, 4,20,000। So write down the note. Company will ask call on 70,000 shares, that is 77 minus 7, and these 7 are forfeited shares of Sundaram. ये 7,000 शेयर forfeited हैं सुंदरम के। Good.
नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, अब फाइनल कॉल रिसीव की जाएगी। बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर forfeiture. Bank calls in arrear to share forfeiture. How much? His shares were also forfeited. सत्यम के पास 500 शेयर हैं, उसने पैसे नहीं दिए। 500 into 7 शेयर फाइनल कॉल, राइट। कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई 4,90,000 पर, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई 490 पर, और 500 शेयर सत्यम के उसने 7 रुपीज नहीं पे किए फाइनल कॉल के, 3500 नहीं आए। 4,90,000 से 3500 नहीं आए तो कितने आए? 486,500। नेक्स्ट, अब ये शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। लेट्स पास द फॉरफीचर एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में 500 इंटू कॉल्ड अप, जितना पैसा अभी तक मंगवाया है 10। प्रीमियम मंगवाया है पर पे नहीं किया, प्रीमियम में जो मंगवाया है पर पे नहीं किया। देखिए, सत्यम ने एप्लीकेशन का 30 प्रीमियम पे कर दिया, सत्यम ने अलॉटमेंट का 4 प्रीमियम पे कर दिया, सत्यम ने कॉल का 6 प्रीमियम नहीं पे किया, तो प्रीमियम में आ जाएगा 3,000। कॉल्स इन अरियर, जो उसने टोटल नहीं पे किया इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 7। फॉरफीचर, जो उसने टोटल पे किया है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 9, एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। 10 रुपए शेयर कैपिटल के, फॉरफीचर में 9 रुपए, 10 में से 9 पे किए, 7 टोटल नहीं पे किए जिसमें 6 प्रीमियम नहीं पे किया। अब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुली पेड अप। 1000 शेयर 50 रुपए पे रीइश्यू किए, 10 का शेयर 50 पे, मतलब 40 के प्रीमियम पे इश्यू किया। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल टू रीइश्यू किया बैंक, to equity share capital to security premium reserve। 1,000 into 50, 50,000, 10 का शेयर 1,000 into 10, 10,000, बैलेंसिंग फिगर 40,000 प्रीमियम। अगर डेबिट होता तो फॉरफीचर में जाता, क्रेडिट है तो प्रीमियम में जाएगा। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री 10th, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? Share forfeiture credit minus share forfeiture debit, but there is a point here। सुंदरम के 7,000 शेयर, सत्यम के 500 शेयर, राइट। सुंदरम के हैं 7,000 शेयर्स और सत्यम के हैं 500 शेयर्स, टोटल 7500 शेयर्स हैं फॉरफिटेड, जिसमें से रीइश्यू कितने किए? सिर्फ 1000, ओनली 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब देखना पड़ेगा किसके कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। 7,000 शेयर सुंदरम के हैं, 500 शेयर सत्यम के हैं, 7500 में से 1,000 शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो किसके कितने? क्वेश्चन में मेंशन होगा किसके कितने शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं, स्पेसिफिकली मेंशन होगा।
नहीं तो कंपनी लगाती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले शेयर्स पहले री इशू होंगे, फर्स्ट इन जो पहले फॉरफिट हुए, फर्स्ट आउट वो पहले री इशू होंगे, इसे कहते हैं फीफो, इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। इस क्वेश्चन में मेंशन है द री इशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ सत्यम। सो 500 शेयर सत्यम के री इशू किए और 500 सुंदरम के। सो 7000 में से 500 री इशू किए सुंदरम के, 500 में से 500 री इशू किए सत्यम के। सो फर्स्ट सुंदरम शेयर फॉर फीचर क्रेडिट ये रहा, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट 35,000 is for 7,000 shares. What about 500 shares? This is Sundaram plus share forfeiture credit 4500 is for 500 share minus 500. This is Satyam minus 0 share forfeiture credit minus share forfeiture debit. ये जाएगा कैपिटल रिजर्व। The formula to transfer share forfeiture to capital reserve is share forfeiture credit minus share forfeiture debit. So share forfeiture, अच्छा सीधा ऐसे नहीं करना कि दोनों को ऐड करके 7500 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना। टोटल शेयर फॉरफीचर क्रेडिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, ये गलत है, इस तरीके से करते हैं। सुंदरम के शेयर्स पहले, सत्यम के शेयर्स फिर माइनस फॉरफीचर डेबिट। सो 35,000 का फायदा हुआ 7,000 के शेयर्स पर, तो 500 पे कितना हुआ 2500 माइनस शेयर फॉरफीचर दैट इज 4500 डायरेक्टली माइनस 0 शेयर फॉरफीचर क्रेडिट प्लस शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। 7,000 will be transferred to capital reserve. 7,000 will be transferred to capital reserve. Done. This is your 8 mark का question, 6 to 8 mark का question. Speed up, note it down. Take your time. I'm giving you 1.5 minutes for the same. Speed up 1 more minute. Okay, moving on. Now I am moving to the theoretical concept. Question 81 आप अपने आप करेंगे, adjust the forfeiture and reissue entry, ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर
16th, question 81. Question 81 you will be doing yourself, and the answer of the same will be in this lecture. Okay, moving to the theoretical concept now. Please open the types of company. Please open the types of company. Page 2. Companies are of following three kinds. 3 तरह की कंपनीज होती हैं. हम जो कर रहे हैं ये किसी एक में से कंपनी में से है. द फर्स्ट इज वन पर्सन कंपनी. ओपीसी कहते हैं इसे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines one person company as one person company means a company which has only one person as member. ये वन पर्सन कंपनी नहीं है क्योंकि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं. अगर एक ही पर्सन, जो आपने आजकल सुना होगा स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, ये वन पर्सन कंपनीज के होते हैं जनरली. रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 further prescribes that only a natural person being an Indian citizen and the resident in India can form one person company or can be a nominee of the sole member of one person company. The person should be of Indian resident and Indian citizen also. One person can form only one person company or become nominee of only one such company. एक पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है. एक पर्सन वन पर्सन डिफरेंट कंपनीज नहीं बना सकता. इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. एनपीओ कंपनी नहीं हो सकती वन पर्सन कंपनी. It cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate like mutual funds. कोई भी फाइनेंशियल कंपनी नहीं हो सकती है. Its paid up share capital is not more than 50 लाख. एक पर्सन अपनी कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता. Its average annual turnover for 3 years should not exceed 2 करोड़. उसकी सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती. एवरेज ऑफ 3 इयर्स. अगर होती है तो उसे ट्रांसफर कंपनी कन्वर्ट करवानी पड़ती है. अ वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर. 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर उस कंपनी के नहीं हो सकते जो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं. और जनरली उसके क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही ये डायरेक्टर्स बनते हैं. The second type of company we have is private company. A private company is one which has the minimum paid up share capital may be prescribed and which by its article of association restrict the rights to transfer its shares if any. ये कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाते या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. Except in case of one person company limits the number of members excluding its present or past employees members to 200. Where shares are held by 2 or more persons jointly, they shall be treated as a single member. Stands for प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी शेयर कैपिटल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा नहीं हो सकती, जो हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं. वो अपनी कंपनी के शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ट्रांसफर नहीं करते. क्योंकि अगर अंबानीज का बेटा शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर देता है तो वो कंपनी तो कोई और टेक ओवर कर लेगा. ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स. It's a private company. 20 member past employees average नहीं हो सकते. Excluding that, prohibits any invitation to public to subscribe any of the securities of the company. कोई भी जनरल पब्लिक शेयर्स नहीं खरीद सकते, इन्विटेशन नहीं मिलता हो. A private company should have at least 2 directors but not more than 15 directors. The name of the private company ends with the words private company, private limited. The third type of company we have is public company. A public company is which is not a private company, which is not the one member company, one person company. It has the minimum paid up capital as may be prescribed and is a private company being a subsidiary of a company which is not a private company. Public company is basically जिसमें लोगों के पैसे लगे होते हैं. It's not generally कि गवर्नमेंट कंपनी ही होगी, लोगों के पैसे लगे हुए हैं और वो प्राइवेट का मतलब उसके रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते. अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. जैसे जैसे शेयर कैपिटल बढ़ती रहती है, मेंबर्स बढ़ते रहेंगे.
A public limited company should have at least 3 directors but not more than 15 directors. The name of public company ends with the word limited. So Reliance Limited is a public company. Reliance Private Limited is a private company. Reliance Private Limited के अंदर शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, जनरल लोग उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. रिलायंस लिमिटेड में पब्लिक के पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं. इट्स अ पब्लिक कंपनी. A public company can raise its capital by issue of shares to the subscription. 1. A company, private or public, may be limited liability company, unlimited liability company and company limited by guarantee. So जो private और public company होती है, one man company is obviously a private company, वो 3 तरह की तरीके से हो सकती है. A company having the liability of its member limited by its memorandum of the amount if any unpaid share of respectively held by them is termed as company limited by shares. आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपको उस कंपनी के उतने पैसे कंपनी को देने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने उसके शेयर्स खरीदे हैं. दैट मीन्स आपने 1000 शेयर खरीदे 10 रुपए का एक, तो यू आर लाइबल टू पे 10,000. योर लाइबिलिटी फॉर दैट कंपनी इज लिमिटेड. Unlimited liability company. It is a company where the liability of its members is unlimited. Thus, in the event of winding up of an unlimited company, the debt of a company shall met by the private property of the members. जैसे किंगफिशर कंपनी बंद हो गई तो माल्या का घर को बेच के पैसे पूरे किए गए हैं. जब कंपनी खत्म होती है उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं हो पा रही तो डायरेक्टर्स के प्राइवेट एसेट्स को बेच के कंपनी की लायबिलिटी पूरी की जाए. दैट कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इट इज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स बीइंग बाउंड ऑन. डायरेक्टर कहता है कि मैं 2 करोड़ तक दे सकता हूं या 20 लाख तक दे सकता हूं. सो दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी. So the limited liability is shares तक पैसे देने पड़ेंगे, fully paid up shares तक. Unlimited means shares के ऊपर जितना पैसा चाहिए होगा प्राइवेट एसेट्स को बेच के दिया जाएगा. थर्ड इज गारंटी. गारंटी दी जाएगी अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े तो डायरेक्टर इतने पैसे दे सकता है या देने को तैयार है. ये पहले ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिसाइडेड होता है. नीचे तीनों कंपनीज का डिफरेंस है जो आप अपने आप करेंगे सेल्फ. सो इस लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 81 एंड द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.